Good morning, everyone. Good morning, Stu- ma'am. Very good morning to students. Please unmute yourself and switch on your videos. Good morning, everyone. I am Miss Nikita Jain, Head of Mechanical Engineering Department. I want to welcome you all in the webinar of Future Skills for Engineering Student. Let me welcome first our honorable speaker, Mr. V.K. Jetli, Chief Operating Officer, DCM Shriram. He has a great experience in the managing of President of Kota Divisional Employers Association, Vice President of Rajasthan Employer Association, Director at Kota Club Limited, Kota, and Maheshwari Samaj Seva Sansthan Limited, Secretary of Sri Ram Social Development Society, Chairman of Sports School Kota, Vice Chairman of Dr. Banshidhar School Managing Committee, Member of Advisory Board of Amity University Jaipur, Member of Board of Governments of University of Kota, Member of Board of Studies for MBA at Rajasthan Technical University and Bikaner Technical University, Vice President of Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Patron of Indian Society for Training and Development, Coastal Chapter and Kota Gyan Dwar Society, Secretary, Organizing Committee of DCM All India Hockey Tournament. Honorable Sir started his career with Scooters India Limited and then moved to Uptron Television for setting up the Greenfield project. Sir joined group in 1978 as management trainee and worked with four generation of Sri Ram family. Now, I am requesting Honorable Mr. V.K. Jetli sir to address our students and glorify them with their vision. Hand over to you, sir. Very good morning to Nikita Jain. Good morning to students. Good morning to all the HODs of Career Point University and ladies and gentlemen, boys and girls. Nikita has told certain things about me. I don't know whether it is all correct. I mean, it has to be correct. And you need to understand one thing. I am not an academic. I'm not a professor or a reader. I'm a worker. I work in a manufacturing organization, and my age is 20 years. And I have an experience of 47 years in the manufacturing industry. I'm representing DCM Shriram Industries Limited, where I work as Chief Operating Officer, CEO of the company. Today, the Career Point University is organizing the webinar on, and the webinar is organized by Department of Mechanical Engineering, Career Point, Kota. The topic is Future Skills for Engineering Students. This topic is different than what you have been reading or you've been taught by your professors, readers, or the school people, or college, or the vice chancellor or principal, whoever has been your guru and this thing. I will, any topic, any subject, if we start, we need to understand what are the drivers of change. Is the English is okay or Hindi English mix is to be there? Or please feel free to tell me so that I change my language and this thing. So I think before we understand or start any topic, we need to understand the most important thing, what are the drivers of change. से ड्राइवर्स ऑफ चेंज जो हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हमने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, या आज से 5 साल पहले, जब आप लोग, या 2 साल पहले, 3 साल पहले, और इवन लास्ट 1 ईयर के अंदर में, इफ वी हैव स्टार्टेड आवर करियर, what are the drivers of changes? The period of the old people, the new people, or a current generation or new generation, most the drivers of change as of now is in India. India has a more youngest population, so that our teaching staff is also young. As of now, more than 50% Indians are below the age of 25 years. Please mark my words. Minimum 50% people are below the 25 years of age, and 65% Indians are below the age of 35. It means we are the youngest population on this earth. Meaning, if we are the young, so young generation, the second driver of, when we are the youngest population, this is the driver of change in India. 10 years back, our job aging was different. Today,
we have a youngest population. Since youngest populations are there, teachers are young, and all the engineering colleges and universities are, most of them are young. They are not as old as of 100 years or 200 years. So the young generation has different aspirations and expectations. So now coming, saying first driver of change is we are the youngest population in the country. This is one thing. Before we take any discussion or decision or any advice, most importantly, we need to understand, we need to deal with always with the younger population of the country, at least for next 20-25 years till the ratio changes. The second driver of change is basically the effect of COVID. Even in 100 years time, we never have seen this kind of हम लोगों ने इतनी बड़ी महामारी जीवन में नहीं देखी. ये कोरोना वायरस जो आया, इससे पहले अगर देखें तो 1918 में करीब आज से 100 साल पहले 1818 में 1819 में 100 साल पहले एक वायरस आया था जिसमें कोई ऐसा माना जाता है कि 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी और जिसको बाद में स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया. अभी ये जो कोरोना वायरस आया इसकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हमसे अब उसकी चर्चा सबको वी आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट कोरोना वायरस. बट व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ चेंज ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का सबसे बड़ा चेंज ये है कि वी हैव लर्न्ड द वेबिनार्स, वी हैव लर्न्ड हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू वेब मीटिंग्स, webinars and Zooms and Cisco WebEx meetings are on. So we have learned the use of digital and the latest technology. This is another driver of change. In the 1 year time, there has been another driver of a change which pertains to the national security. हम लोगों ने ये भी देखा इंडिया चाइना बॉर्डर पर प्रेशर. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर is always there. There is a pressure on this now increase in the India Nepal also, because in Nepal has added some of India's post map in their national map. So this is the national security is another driver of change. Now recently with the COVID coming into this and the people started looking into the China and Chinese imports and those kind of things. So import from China and the Atmanirbhar Bharat is again a driver of change. Meaning we import roughly more than 5 lakh crore worth goods from China. These are basically the low quality, low cost items. It does not, it is not a very high tech or something what we import from China, but the quantity, इसका जो volume है, जो इसका जो वो है, it is more than 5 lakh crore rupees a year. मीनिंग अगर आप देखो तो 40,000 करोड़ रुपया महीना का सामान हम चाइना से मंगाते हैं. दैट इज व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत. सो दिस इज अगेन अ ड्राइवर ऑफ चेंज व्हिच विल सर्टेनली नेक्स्ट 5 years or 20 years from now, this will be again a driver of change. And we have seen the American election where Trump lost the election and it appears, it says, हम लोग को ऐसा बताया जाता है there was a issue of Black Lives Matters, meaning जो आज जाति और वेद और कलर के हिसाब से जो अमेरिका में इशू था तो Black Lives Matters. अगर आप लक्मे का एड देखो तो उन्होंने पहले होता था इनका फेयर एंड लवली. नाउ इट इज they have changed their ad also, and so Black Lives Matter is also there, and new education policy that is also one of the driver of change. We are engineering students, I believe, here in today's seminar, so it will more relevant for the engineers and engineering student, HODs of engineering branch. We need to understand Industry 4. Now, when we talk about Industry 4, I think it must have been taught to you people what was the Industry 1, what was Industry 2, what was Industry 3, and what is Industry 4, and how Industry 4 has started in 2011. Today topic is a future skill for engineering student. But what is more important? Let's understand one thing. We always, as a student, we always think for the teacher heroes who taught us the academics. But we do not think of those who teaches us the lesson of life. So today,
I presume you are doing engineering, so your academic part and all those things are covered. आपका सब चीजें वो cover हो जाती हैं. I am not talking about the engineering that you are reading or you have been taught or your professors are there and your HODs are there. So they are teaching you the subject. If we look at basically the engineering, there are three dimensions of growth as an engineer. First is a basic concept of mechanical engineering. That's basically the branch which is organizing this webinar. And in the same, you understand the manufacturing, thermal, industrial engineering, etc., etc. So I just presume it's not a part of my topic. This will all be covered by your university and your HODs and your department. Now, if I look at a future past prospect, for all academic mechanical engineer, future prospect are basically you go for higher studies after completing your engineering, like IITs, NITs, abroad, government job, PSUs, IC, and university, etc., etc. Or your achievement could be core and government jobs. As a mechanical engineer, you have to see the second aspect, that is advanced technology of mechanical engineer. That is must be a part of your subject, CAD, CAM, 3D printing, robots. So all this smart material, etc., is, I presume that it must have been taught in your subject. The next is a future prospect, aerospace, R&D, design, robot, automatic, industry, biomedical, and applications. These could be the another scope for mechanical engineering, and their achievement could be automation and robots and artificial intelligence. This is automation and artificial intelligence is basically the industry 4. The third thing would be for industry orientation and program skill. CN, the artificial intelligence, mechanical engineering, internet thing, data science. Yes, these are all being taught to you, are aware of. So it is not my area of I should be concentrating. Then you must also be aware of software companies, automation industry, testing company, interdisciplinary opportunities and mechanical engineer, and those things are normally taught to them. Let's understand. बच्चों एक चीज जरूर सीखना पड़ेगा हमको कि हमारे अंदर चेंज क्या हुआ. आज ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर में इंजीनियरिंग लोग करना नहीं चाहते. एक दूसरा, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दे डोंट हैव अ कैंपस सिलेक्शंस. तीसरा, it is said that most of the colleges and the private institution, even the government institution, does not have a faculty member. They don't have a facility. And as an industry, we think कि जो भी आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, जो करके आ रहा है, वो because of the lack of skilled teachers or infrastructurability or exposure, etc., most of the people are, I will say, though they have a degree, but they are not employable. This is a fact with the 60 to 70% engineers in India. Why it is so? It is, we need not to blame the institutes, we need not to blame the HODs. हमको उनको blame करने से पहले हमको ये drivers of change में हमने बात की थी, तो हमको समझना चाहिए. During when I was studying, या हम लोग जो in my group of people, हम लोग को एक चीज बताई गई थी, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए. Means a person जिसको प्यास लगी है वो कुएं के पास जाएगा. He has to make all efforts. हमने क्या किया, हमने तो मेहनत करी, कुएं के पास गए, लेकिन जब हमारे बच्चे हुए तो हमने कहा हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी. Why? हम कुएं को क्यों नहीं बच्चों के पास ले आए. तो our generation of people, the next generation पर कुएं को बच्चों के पास लाके दे दिया. तो बच्चों को ये नहीं पता लगा कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए. अब उनके जो बच्चे हुए थे, थर्ड जनरेशन जो आज की तारीख में स्टूडेंट्स हैं, जो आज या स्टूडेंट होंगे कल के, वो ये क्वेश्चन करते हैं अपने पेरेंट्स से, क्या पानी मिनरल वाटर है, क्या पानी ठंडा है, या क्या पानी ये है. मतलब आज की जो जनरेशन है या जो नई जनरेशन आएगी, दे विल ऑलवेज क्वेश्चन, आर वी ड्रिंकिंग अ मिनरल वाटर, इज दिस द कोल्ड वाटर, और दिस इज व्हाट वाटर. बट ये हमारे जो भी जनरेशन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों,
ये भूल गए, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, जब तक फंडामेंटल्स को भी हम दोबारा याद नहीं करेंगे, हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर, सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन सकते। एक Before I go to other details, I would certainly like to tell what are the top 10 skills, what I think 5 years from now, the country would be looking, entire world will be looking from the engineers. Top 10 skill of 2020 means 5 years from now, it has to be analytic thinking and innovation. Analytic thinking and innovation will be the number one skill what the people will be looking 5 years from now, or even looking for as of now even. Active learning and learning strategies, that will be the second step. Third top skill is needed is complex problem solving. Next, fourth is a critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiative. This will be the next skill what the board will be looking for. Leadership and social influence will be the another point, another skill. Use of technology, monitoring and control, technological design and programming, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving, and addition. These will be certain thing. A type of skill will be problem solving, self-management, working with the people, and technology used for development. Meaning there will be 5 skills, type of skill. Problem solving will be 1, self-management will be 2nd, working with the people 3rd, and technology use and development will be the future skill what we are looking for. I have just given a ground. All those things you people can get on the internet, search anything, you get thousands and thousands of a paper and the websites which will give you all this idea. So I leave whatever you want to know and understand from this, go and search this. I'm not going to put my energy into this subject. However, I would certainly like to tell you people the future skills may your lesson for life lessons क्या होनी चाहिए. Before I'm going to talk about lot many practical things which some of you are aware of, some of may not be aware of, or some of you ये हो सकता है कि refresher course हो सकता है. So basically, if we look at the life of lesson, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे important ये है, who are we? If we question ourselves, हम कौन हैं? या what is the objective of my life? या मेरी आज जीवन में वैल्यू क्या है? ये जितने भी लोग आज समय यहाँ पर 30, 35, 40 है, जो भी लोग, जितने लोग भी 35, 38 people, all those people, can they answer this कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है? जब हमने कैरियर शुरू किया था या करने जा रहे हैं तो हमने सोचा है हमारे जीवन का मूल्य क्या है? What is the value of my life? What is the value? So I give a small story. एक बच्चा, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या करके निकलोगे, आगे जाओगे या जो भी है, तो एक बच्चा अपना इंजीनियरिंग करके आता है, आकर के जाकर उसके मन में पहला सवाल उठता है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय लाइफ. तो अपने गुरु के पास जाता है, सर मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. गुरु उसको, अपने बच्चे को एक बार देखता है और देख के बोलता है कि बेटा मैं तुमको बताऊंगा, तुमको समझ नहीं आएगा. वो उठता है, उठ के अपने एक अलमीरा खोलता है, अलमीरा से एक लाल पत्थर निकालता है और लाल पत्थर निकाल के इस बच्चे को देता है जो उसके पास जाता है. बोलता है ये लाल पत्थर है, जाओ इसका मूल्य बाजार में जाके पता कर लो, इसको बेचना नहीं, खाली तुमको इसका मूल्य पता करना है. तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा होता है, ये जो उसका एक्सपोजर नहीं है, तो सबसे पहले वो निकलता है, जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो निकल के जब वहां पहुंचता है तो उसको आगे एक फल वाले की दुकान मिलती है. उस फल वाले के पास जाता है और दिखाता है, भैया ये लाल पत्थर है, क्या इसका मूल्य क्या होगा. उसको देखता है, घुमाता है हाथ में, कहता है पत्थर तो अच्छा है, लाल रंग का पत्थर अच्छा चमकता है, मैं तुमको इसके बदले 1 दर्जन केले दे सकता हूं. तो वो उसको, एक जो फल वाला है उसको कहता है इस लाल पत्थर का मूल्य जो मेरे हिसाब से 1 दर्जन केले है. वो थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है, आगे जाता है तो उसको एक बड़ी सी एक डिपार्टमेंट स्टोर मिलता है, वहां वो पत्थर दिखाता है, बोलता है कि भाई मेरे गुरु ने बोला इसका मूल्य पता करने के लिए
तो कृपया करके बता दें इसका मूल्य क्या है। वो दुकानदार उसको देखता है, देख करके बोलता है, भाई पत्थर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका मूल्य, इसके बदले में, इस पत्थर के बदले मैं आपको 100 किलो गेहूं दे सकता हूं। और आगे बढ़ता है, सोचता है कि इस पत्थर में मैं जिस लोगों को बोल रहा हूं, ये पहले को मिला था, उसने बोला 1 दर्जन केले दूंगा, दूसरे को मिला, वो कहता है मैं 100 किलो गेहूं दूंगा आपको। थोड़ी दूर और आगे जाता है, बीच में जाता है तो एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, वहां जाके उस पत्थर को दिखाता है। तो पत्थर दिखाने के बाद में उसको बोलता है, भैया ये पत्थर का मूल्य बता दो। वो देखता है, बोलता है, हाँ पत्थर तो बहुत अच्छा है, इसके मैं तुमको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। पत्थर वही है, वो पहले एक आदमी से मिलता है तो उसको 1 दर्जन केले बोलता है, दूसरे आदमी से मिलता है, वो उसको बोलता है इसके इसके बदले आप 100 किलो गेहूं ले लो। तीसरे के पास जाता है, वो कहता है उसका इसके 10 लाख रुपए ले लो। वो सोचता है कि अभी इसकी पता तो लगानी मुझे, इसका मूल्य एक्चुअली क्या है। तो आगे जाता है तो वो एक डायमंड वाले जो जो स्टोन में काम करते हैं, वो जौहरी, उन जौहरी के पास जाता है और वो पत्थर दिखाता है। जौहरी की आंखें खुली रह जाती हैं, उस पत्थर को देखता है, देख करके उसको नीचे अपने पास लाल कपड़ा बिछाता है, उसके ऊपर रख देता है और एक अगरबत्ती जलाता है और उसको साक्षात प्रणाम करता है और बोलता है कि बेटा ये तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला, ये मुझे दे दो। वो बच्चा कहता है कि मेरे को इस पत्थर को आपको नहीं देना है, मुझे खाली इसका मूल्य बता करना है, इसका मूल्य क्या है। तो जौहरी उसको बोलता है, ये पत्थर नायाब है, ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। तो बच्चों, जीवन तुम्हारा है, कैरियर तुम्हारा है, चाहो तो इसको 1 दर्जन केले पे लगा देना, चाहो तो 100 किलो गेहूं के बदले में लगा देना, या 10 लाख में लगा देना, या अपने जीवन को अमूल्य बना लो। सबसे पहला मूल्य है कि जीवन का मूल्य क्या है। ये मैं आपको जो बात कर रहा हूं, लाइफ लेसन्स की बात कर रहा हूं। जब हमने इसकी बात हमने कर ली, तो मैं आपको एक दूसरी चीज और बताना चाहूंगा। जीवन के मूल्य में सबसे पहली चीज होती है शिक्षा। जो आप शिक्षा तो ले रहे हो, शिक्षा हमने ली, लेकिन उस शिक्षा को, देयर 3 वर्ड्स इन इंग्लिश, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो हम अगर न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जो पढ़ा वो इंफॉर्मेशन हुई, उस न्यूज का अगर मतलब समझा तो नॉलेज हुआ, और अगर उस न्यूज को अपने जीवन में उतारा तो वो विजडम हो जाता है। मेरे को एक चीज बहुत क्लियर है, वो कौन सी अच्छी न्यूज है जिसको हम विजडम में ले जा सकते। बुलिंग चल गया है, नहीं बुलिंग का तो मैं तुम्हें बताऊं अभी। ओके चलो इग्नोर करो। हेलो हेलो अगर वो उनके पीछे जा रही है। हेलो, ये अपना माइक म्यूट कर दे भाई, जो भी इसका माइक ऑन है। Student, please सो mute your mic. बेसिकली जिसको भी सवाल पूछना हो इसके बाद में पूछ लेगा, जिसको क्लैरिफिकेशन कोई चाहिए होगी। तो आप लोगों के ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती शिक्षा। हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम पे थे, तो हमको अपने जीवन में विजडम में क्या करना है, इसके ऊपर ज्ञान करना, बात करना और समझना इसका बहुत जरूरी होता है। शिक्षा में आप जो एकेडमिक शिक्षा आपको मिल रही है, शिक्षा अकेली आपको सक्सेस नहीं दे सकती। आपको सक्सेस क्या दे सकता है? शिक्षा के साथ जो टीचर हैं या उनके पेरेंट्स हैं या जो भी है, संस्कार बहुत जरूरी है। बिना संस्कार के शिक्षा बेकार है। आप कुछ भी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, पीएचडी कर लो, एमएस कर लो, कुछ कर लो, अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। अब संस्कार आप लोगों को सबको पता होगा। आप लोग सोचते हो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक केला खाते हो, फल एक है, अब ऐसा कहा जा सकता है कि केले का जो छिलका होता है, केला खाने के बाद में जो छिलका बचा उसको आप डस्टबिन में डाल दो। आप लोग ये समझते हो ये संस्कार है। माय डियर फ्रेंड्स, ये संस्कार नहीं है, ये कर्तव्य है। केले को छील करके केला खा लेना और उसका जो छिलका है उसको डस्टबिन में डालना, ये संस्कार नहीं है, ये है कर्तव्य। तो संस्कार क्या है? आप जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति ने केला खाया और छिलके को सड़क पर फेंक दिया, आपका जो संस्कार होगा, आप उसको, उस छिलके को उठाओ, डस्टबिन में डालो और उस व्यक्ति को बुलाओ और बुला के बताओ, भैया केले का छिलका डस्टबिन में डालते हैं। दूसरों को भी अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, ये संस्कार होते हैं। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा अधूरी है अगर संस्कार नहीं है।
अगर आपने HODs, नाउ आई एम एड्रेसिंग स्पेशली टू द HODs, आपने शिक्षा दे दी और संस्कार का भी बांट दिया, लेकिन संगति पे ध्यान नहीं दिया। संगति बहुत बड़ा चीज है। संगति, कोई कितना भी ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर संस्कार कितने भी अच्छे हो, लेकिन उसकी संगति अगर ठीक नहीं है। संगत का मतलब आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, आपका क्या व्यवहार है, अब क्या है। अगर आपने संगत किसी भी गलत चीज की कर ली, ड्रग की लत डाल ली या कोई चीज डाल ली, या किसी के साथ में आप रहे जिसके अंदर में जीवन में क्या करना है, सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कोई और है, तो किसके साथ आप उठते हो, किसके साथ बैठते हो, किसकी आपकी संगति है। ये संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जब आपका शिक्षा हो जावे, संस्कार हो जाए और संगति आपकी ठीक कर ले, तो इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी एकता, एकता का मतलब होता है पारिवारिक एकता, समाज की एकता, प्रदेश की एकता और देश की एकता। हम लोग क्या करते हैं, हम माता पिता बड़े बुजुर्गों का दिखाने के लिए तो आदर करते हैं, या पीठ पीछे हम यही सोचते हैं कि अरे ये तो इनको क्या मालूम होगा, हम तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम इनको क्या मालूम, इन्होंने कोई थोड़ी ना कैरियर पॉइंट में कभी मैं यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो इनका तो अपना जो सोच है, इनसे ज़्यादा तो हमको ज़्यादा पता है। हमको व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, 50 चीज़ें कर सकते हैं, तो हमको जो पढ़ाया गया है इनको तो नहीं पता होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लें बच्चों, हम जिनको समझते हैं कि हमारे माता पिता या बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो नहीं है, तो जो उनके आदर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम सब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन हमको फंडामेंटल राइट भी हमारे पास में है, और हमारे पास में फंडामेंटल हमारे पास में जो राइट मिले हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के हर व्यक्ति को सब चीजों को जो चाहे वो करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन 3 चीजें हैं जिसका अधिकार, none of us have a right to elect, select and choose our parents and relatives. हम अपने पेरेंट्स और रिलेटिव का चुनाव नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, हम we may join to any subject, any university, any college, any this thing, but our right, we do not have a right to elect, select and choose our teachers and faculty members. तो दूसरी ये चीज है जिसका हमको चुनाव करने का अधिकार नहीं है, हमको फ्रीडम नहीं है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि वी मे वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीवेयर, बट आवर राइट टू इलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड चूज आवर बॉस इज सर्टेनली नॉट विद अस। ये 3 बेसिक फंडामेंटल हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ये समय समय पर आते रहते हैं। मैं ज्यादातर बातें 3 शब्दों से कहता हूँ, आपको भी मैंने 3 शब्द इंग्लिश के बताए थे, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अभी हमने 3 आपके फंडामेंटल राइट्स बताए जो आप चूज करने का अधिकार नहीं है। तो इस 3 चीजों में एक 3 और वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। ये 3 हर व्यक्ति के जीवन में, यही 3 जीवन इन 3 शब्दों के आसपास घूमता है। सबसे पहली चीज होती है सेक्रीफाइस। लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लोग सेक्रीफाइस कहाँ करते हैं? सेक्रीफाइस वर्ड इज यूज्ड एट 2 प्लेसेस ओनली। हम लोग अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए या देश के प्रति, और सेक्रीफाइस कहीं नहीं होता। हमारा दूसरा वर्ड जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हम या तो फ्रेंडशिप में करते हैं या नेबर के साथ करते हैं। हमारे पड़ोसी अपनी गाड़ी यहां मत खड़ी करना, या हमारे को यहां पे करना, या हमारे फ्रेंड ने अगर कहीं बोल दिया यहां चलना है तो हम चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट वर्ड इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव्स, सॉरी विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स। रेस्ट ऑल द प्लेसेस वी हैव कंप्रोमाइजेस, चाहे वो अपने जॉब हो या कहीं पर भी हो, जब हम स्थिति को देख करके अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को बदलते हैं। तो ये 3 और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए जो सब लोग हम लोग हैं, हम एक चीज समझें, हम सब लोगों को मिलकर के अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का, एक जितने भी लोग हैं, पारिवारिक एकता का, समाज की अपने देखने का, समाज की एकता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक
आप लोग अभी तक तो बोर हो गए होंगे कि क्या सब कहानी किस्सा मतलब बता रही है, तो हमको पता ही है। एक चीज बच्चों समझो, मैं एक आपको एक चीज बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ, एक कहानी। मैं दिल्ली 2 दिन दिल्ली रहता हूँ, 4 दिन कोटा में रहता हूँ। तो मेरा जो कनॉट प्लेस में ऑफिस है, वहां के उसके सामने एक बिल्डिंग बन रही थी। तो हमारे ऑफिस में एक लेडी होती है, वो उसका उसका जो था, हर ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता था, उस महिला के अंदर में काम कम करती थी, दूसरों के लोगों में बुराई ज्यादा निकालती थी। और वो क्या करती थी कि जो उसको अपना ही किया हुआ काम पसंद आता था, बाकी किसी का नहीं पसंद आता था, और उसको क्रिटिसाइज करने का आदत होती। तो उसका वो अपना काम करते उठते उठते हमारा जो ऑफिस था, वो उसका जो ऑफिस था लड़ी का, वो 12th फ्लोर पे था कनॉट प्लेस में, कंचनजंगा बिल्डिंग में। तो उसके डोर पे अपने ऑफिस में आकर के कर्टन हटाती थी, देखती थी तो सामने की एक बिल्डिंग में एक लेडी रहती थी। तो उसका वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी, ये एक लेडी सामने रहती है जिसके कितनी गंदी रहती है, नहाती नहीं, कपड़े भी साफ नहीं रखती, और जो गंदे कपड़े सुखाती है, और उसका घर भी नहीं पेंट कराया। वो उसको देखती थी और रोज उसको उस लेडी को क्रिटिसाइज किया करती, अपने कुलीग के साथ, सबके साथ। ये रोज का उसका सिलसिला चलता रहता है। एक दिन उसका बॉस उसके पास आ जाता है, वो पीछे आके उसके खड़ा हो जाता है लेडी के। वो लेडी अपनी उसी भाषा में वो उसी लेडी को क्रिटिसाइज कर रही होती है कि भाई, ये सामने जो घर है, उस घर के अंदर जो महिला है, वो गंदे कपड़े सुखाती है, कभी स्नान ध्यान नहीं करती, उसका घर भी कितना गंदा है, ना कभी पेंट कराती है, ना कुछ कराती है, बिल्कुल गंदा रहता है। और तब तक वो मुड़ के पीछे देखती है, उसका बॉस पीछे खड़ा होता है। बोलती है कि सर देखो, अब वो जवाब तो नहीं था, लेकिन वो बोलती है, सर देखिए आप, ये महिला जो सामने दिख रहा है जिसका घर है, एक तो कितने गंदे कपड़े फैला रही है, खुद सफाई नहीं रखती, घर भी पेंट नहीं कराया। मतलब इस तरीके से कोई व्यक्ति घर में कैसे रह सकता है। तो वो अपने बॉस से कमेंट मांगती है, तो उसका बॉस कहता है, आज रुक जाओ, इस पे जवाब मैं तुमको कल दूंगा। अगले दिन वो अपने ऑफिस का काम खत्म होता है, 5 बजे अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह आती है, 10:30 बजे आने के बाद में ऑफिस में आकर के फिर वो पर्दा हटाती है। तो आपकी जैसे पर्दा हटाती है, तो सामने देखती है उसको, वो जो घर था जिसको रोज देख रही थी, जिसको क्रिटिसाइज कर रही थी, ये गंदा है गंदा है, और वो लेडी गंदे कपड़े फैलाती है, तो देखती है। तो अब आज उसको सुबह सुबह वो घर बहुत शानदार पेंट किया हुआ था, बहुत शानदार दिख रहा था। वो महिला भी अच्छे कपड़े पहने थी, बिल्कुल धुले हुए कपड़े थे, साफ कपड़े थे, और जो कपड़े बाहर फैलाने आई थी वो भी बहुत ही साफ थे, जो एक आदर्श परिवार का होता है। तब तक उसका बॉस उसके ऑफिस में आ गया, बोलता है, सर कल शाम तक तो मैंने दिखाया था आपको, ये महिला सब चीजें गंदी थी, रात भर में क्या हो गया सर कि ये एकदम से बिल्कुल पूरा सीन बदल गया, घर भी इसका पेंट हो गया, इसको जो कपड़े थे वो भी सब नए आ गए, सारे अच्छे कपड़े, सब कुछ है। तो उसका बॉस बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ना उसने कुछ पेंट कराया, मैंने जो तुम्हारा जो शीशे के थ्रू देख रही थी वो ग्लास गंदा था, मैंने एक प्यून को बोला था और खाली ग्लास को साफ कराया था। ना आपके आगे जो आंखों के आगे जो ग्लास था, वो ग्लास खाली गंदा था, धूल जमा थी, उसको मैंने साफ कराया, आपको नजारा बिल्कुल साफ हो गया। तो देखने का हम जो सोचते हैं, एजम्पशंस एंड प्रजम्पशंस, वो जीवन में बहुत दुख देते हैं। तो हमको एजम्पशंस एंड प्रजम्पशंस के बारे में देखना चाहिए। बच्चों, ये ऐसा कहा जा सकता है, जो कहते हैं स्मॉल माइंड डिस्कस द पीपल। जो छोटा दिमाग के लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो स्मॉल माइंड्स डिस्कस द पीपल। द एवरेज माइंड डिस्कस द इवेंट। जैसे किसान आंदोलन है या जो भी चीज है, वो इवेंट को डिस्कस करते हैं। द ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। So we should not be wasting our energy on like a small mind discussing the people, or average mind discussing the event. We should be discussing about the ideas. Now, since I'm on idea only, आप लोग इंजीनियरिंग कर चुके हो, एक छोटी सी और एक सुंदर सी कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको चीजों को समझ में आएगा। एक आपकी तरीके बच्चा इंजीनियरिंग करके जाता है, अपने फादर के पास जाता है। Father, Dad, I have completed my engineering, or I have completed my MBA, I have done my studies.
तो उसका फादर उसको बोलता है बच्चे को कि बेटा सुनो, अभी तुम इंजीनियरिंग करके आ रहे हो, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, एक हफ्ता हॉस्टल से आए हो, एक हफ्ता आराम करो, आफ्टर 1 week आई विल गिव यू 1 assignment एंड जस्ट सी हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स। तो बच्चा 7 दिन निकल जाते हैं, अगले दिन सुबह सुबह उसके फादर उसको बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा इधर आओ, 7 दिन होगा तुमने कोर्स करके आए हो। वो अपना कवर्ड खोलते हैं और उसमें से एक टी शर्ट निकालते हैं। ही टेक्स आउट हिज टी शर्ट और उस बच्चे को बोलते हैं ये टी शर्ट मेरी एक है व्हाइट कलर की, इसका मूल्य वैसे तो 100 रुपए है, कैन यू सेल दिस टी शर्ट ऑफ 1000 रुपीज? इस टी शर्ट को क्या आप 1000 रुपए में बेच सकते हो? अब वो बच्चा जो है जो एवरेज माइंड होता बोलता क्या बात करते हो, 100 रुपए की टी शर्ट को 1000 में बिकती क्या? उस बच्चे ने ये नहीं सोचा, नहीं ये नहीं हो सकता। हम में से 95% लोग सोचते हैं ये नहीं हो सकता। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, सोचा हाउ टू डू इट एंड हाउ टू मेक दिस थिंग हैपन। वो सोचता है इसको कि मेरे को इसका ऑब्जेक्ट टारगेट मिला है ये 100 रुपए की टी शर्ट 1000 रुपए बेचनी। वो सबसे पहले उस टी शर्ट को वॉश करता है, वॉश करके प्रेस करता है, प्रेस करके पॉलिथीन में पैक करता है। वो पैक कर लेता है उस पॉलिथीन में, उसके बाद जाकर के उसको वो वहां पे सब पूरे शहर में जाता है, घूमता रहता है, बोलता है ये कि मेरे पास टी शर्ट है नाइसली, इससे ज्यादा क्लीन नहीं हो सकती और इसको आप देख। तो वो 7-8 घंटे बाद वो एक कस्टमर उसको मिलता है जो उसको 1000 रुपया दे देता है। वो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको 8 घंटे लगे उस टी शर्ट के 1000 रुपए में किसी को बेचने के। शाम को आता है, ही वॉज वेरी हैप्पी और आकर के अपने फादर से बोलता है सर यू गेव मी अ टास्क टू सेल अ टी शर्ट ऑफ 100 रुपीज टू 1000 रुपीज, मैंने एक बेच दी। उसका फादर कहता है गुड, वेरी गुड। ही सेज अब नेक्स्ट मंडे आई विल गिव सेकंड असाइनमेंट टू यू। 7 दिन बाद उसको दूसरा असाइनमेंट देता है। ही टेक्स आउट द सिमिलर शर्ट, जो टी शर्ट वो 100 रुपए की होती है, अब की वो बोलता है उसको कि बेटा ये पहली टी शर्ट मैंने तुमको वो दी थी, तुमने 1000 रुपए में बेची और तुमको 8 घंटे का समय लगा। ये मैं सेम टी शर्ट देता हूं, कैन यू सेल दिस टी शर्ट फॉर 10,000 रुपीज? क्या इस टी शर्ट को आप 10,000 रुपए में बेच सकते हो? ये उसको टास्क उसका फादर देता है। अब वो बच्चा फिर अगेन वो नहीं बोलता ये इम्पॉसिबल है, वो सोचता है यस हाउ टू डू इट। वो सोचना शुरू करता है इस टी शर्ट को मैं 10,000 रुपए की कैसे बेचूं। सोचता है, सोचने के बाद वो सबसे पहले टी शर्ट को साफ करता है, प्रेस करता है और सोचता है इसके 10,000 रुपए कैसे मिलेंगे। वो जाता है, उसे ढूंढता है, उसको टॉम एंड जेरी का एक पोस्टर मिल जाता है। उस टी शर्ट के टॉप फेस पर वो टॉम एंड जेरी का पोस्टर लगाता है और ही दिस टाइम ही आइडेंटिफाइज द ऑडियंस, द बायर। वो इस शहर के सबसे महंगे स्कूल के बाहर जाके खड़ा होता है और उस समय जाता है जब बच्चों की छुट्टी हो रही होती है और वहां पे जाके बोलता है, खड़ा होता है, बोलता है जहां पे कार स्टैंड और साइकिल स्टैंड होते हैं, भाई दिस इज द टी शर्ट जिसके दिस द ओनली टी शर्ट विच हैज अ टॉम एंड जेरी पोस्टर पेस्टेड ऑन द फेस ऑफ इट। सब बच्चे निकलते हैं, हर बच्चा देखता है, कोई अपने फादर को मदर को सबको प्रेस करता है, आई वांट दिस टी शर्ट, मुझे भी ये टी शर्ट चाहिए, मुझे भी टी शर्ट चाहिए। कुछ पेरेंट कहते हैं नहीं नहीं करके जाते थे, तो लेकिन एक बच्चा होता है वो अपने वहां पर रोने लगता है और गिर जाता है और बोलता है कि मेरे को ही ये टी शर्ट चाहिए। अपने फादर को बोलता है, तो फादर बच्चे से पूछता है बेटा ये टी शर्ट हमारा बच्चा कह रहा है तो इसको कितने में दोगे? उसने कहा 10,000 रुपए। उसके फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपने बच्चे की जिद को मानता है और 10,000 रुपए उसको दे देता है वो 100 रुपए की टी शर्ट। बच्चा फिर अपने फादर के पास जाता है जिसने लेटेस्ट अभी पढ़ के आया था, बोलता है सर आई हैव कंप्लीटेड द सेकंड असाइनमेंट आल्सो, यू गेव मी अ शर्ट टी शर्ट of 100 rupees asked me to sell for 10,000 rupees, which I have done, and here is the 10,000 rupees. वो 10,000 रुपया अपने फादर को देता है। His father says, look, you have learned little bit 2 वीक में, लास्ट में तुम्हारा फाइनल असाइनमेंट होगा जो नेक्स्ट हम आपको मंडे को बताएंगे या नेक्स्ट संडे को बताएंगे, 7 दिन बाद रहो। 7 दिन बाद उसका फादर उसको फिर से सेम 7 दिन बाद बोलता है ये टी शर्ट, सेम एक कवर्ड सेम काइंड की टी शर्ट निकालता है, टी शर्ट को देता है और उसको बोलता है कि ये एक टी शर्ट है वही 100 रुपए की जो पहले मैंने 100 रुपए की दी। तीनों टी शर्ट की वैल्यू 100 रुपए ही है। पहली टी शर्ट तुमने 1000 की बेची थी, दूसरी
10,000 की बेची थी, ये अंतिम तुम्हारा असाइनमेंट है, ये टी शर्ट ले लो और इसको 1 लाख रुपए में बेचना है। अब आप यहाँ जितने लोग सुन रहे हो, ये जो सोए नहीं है, वो गारंटी 99% लोग सोच रहे हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जेटली साहब का तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे फैक्ट्री चलाते हैं और ये कहानी बता रहे हैं कुछ। सो बच्चा ये नहीं सोचता ये नहीं हो सकता। द बॉय थिंक्स ओवर हाउ टू डू इट, एनालाइजेस, लुक्स इनटू द टारगेट कस्टमर, और उसके एनालाइज करने के बाद में वो देखता है कि इसका कहाँ से टारगेट मिलेगा। वो भास्कर और पत्रिका उसके घर पे आते होंगे, उसे पेपर पढ़ता है, तो इमीडिएटली वो देखता है कि शाम को एक जगह पर एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा शो है। वो उस शो के में कैसे भी इंतजाम करके पास करके वहां पे जाता है। शो पूरा खत्म होता है। शो वॉज ऑफ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस। और शो खत्म जैसे कि होता है, वो भाग करके स्टेज पर चला आता है, साथ में एक पेन ले आता है और बोलता है कि शो वॉज ऑफ आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट का शो चल रहा होता है, वहां पे वो टी शर्ट लेके जाता है, बोलता है मैडम कैन यू गिव योर ऑटोग्राफ। वो कहती हाँ। वो टी शर्ट निकालता है और टी शर्ट पे आलिया भट्ट का ऑटोग्राफ लेता है। जैसे ही वो टी शर्ट पे आलिया भट्ट का ऑटोग्राफ लेता है, भाग के बाहर जाता है स्टेडियम के बाहर, बोलता है दिस इज द ओनली टी शर्ट विच हैज ऑटोग्राफ ऑफ आलिया भट्ट, इसकी बोली लगाओ। एंड वो ऑक्शन शुरू करता है। 1 लाख रुपए से बोली शुरू होती है और अल्टीमेटली वो उस टी शर्ट को 10 लाख रुपए में बेचता है। उसके फादर ने बोला था इस टी शर्ट को 1 लाख रुपए में बेचना है, उस टी शर्ट को 10 लाख रुपए में ऑक्शन करता है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ स्टोरी सिंपल, क्या हम यहाँ पर जीवन में, अपने जीवन के अंदर में ये नहीं हो सकता पे सोचने वाले हैं, या हम सोचने वाले इसको कैसे करना है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल चीज है। इट इज एन एटीट्यूड विच विल डिसाइड योर फेट एंड योर दिस थिंग। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आप लोग इंजीनियरिंग कर लोगे, इंजीनियरिंग करने के बाद आप सब लोग के मन में विचार आता है कौन सा आएगा, कहाँ जॉब मिलेगी। आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो वरीड होंगे, आपको जॉब कैसे मिलेगी। आप लोग सब भूल गए होंगे, हम सब लोगों को पढ़ाया जाता है, हम सब लोग पढ़ते हैं। एक चीज होती है कि एक चीज होती है वो सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन क्या हो, अपने प्रोफेशन का हम सिलेक्शन कैसे करें। इसमें अगर याद करें, जो हमारे एचओडीज होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, एक कवि हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में जिनका नाम हुआ है मोहम्मद मलिक जायसी। ये 16वीं शताब्दी में थे और उन्होंने 2 पंक्तियों में प्रोफेशन डिफाइन किया था। प्रोफेशन 2 पंक्तियों में इस तरीके से डिसाइड किया था उन्होंने, उत्तम खेती मध्यम बान निशी चाकरी भीख निदान। बस खत्म। किसी भी व्यक्ति को अगर प्रोफेशन का चुनाव करना है तो उसको मोहम्मद जायसी की 2 पंक्तियों को याद करना पड़ेगा। उत्तम खेती मध्यम मान निशी चाकरी भीख निदान। मतलब अगर हमने इंग्लिश में पढ़ा है गुड बेटर बेस्ट, तो जब 16वीं सदी में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, तो उत्तम खेती मध्यम मान निशी चाकरी, उत्तम मतलब बेस्ट। बेस्ट होता है अपना खुद का व्यवसाय, अपना खुद का काम करना। उस समय खेती होती थी सबसे बड़ी चीज, तो अपनी खेती करना, अपना ऑफिस रखना, अपनी इंडस्ट्री खोलना, अपना बिजनेस करना, या अपना जो भी है अपना ही खुद अपना बॉस बनना, ये उस समय बेस्ट माना गया। अगर बेस्ट नहीं हो सकता तो बेटर क्या है, बेटर में मध्यम बान मतलब ट्रेडिंग करना was considered as a second best option, गुड बेटर बेस्ट में। निशी चाकरी भीख निदान, ऐसा कहा गया है भीख मांगना सबसे बुरा प्रोफेशन है। जीवन में भीख मांगना सबसे बुरा प्रोफेशन है। निशी चाकरी, किसी दूसरे की नौकरी करना, भीख मांगने से जरा ही ऊपर है। तो बच्चों, HODs and all the people right now at this webinar must know, हमको अपने जीवन में इस सोच को निकालना पड़ेगा कि हमको एम्प्लॉय बनना है। हमको ये सोच डालनी पड़ेगी, हाउ डू यू बिकम एन एम्प्लॉयर एंड गिव एन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी मोर पीपल। अगर ये सोच करके ही आप अपने यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से और वहां से बाहर निकलोगे, तभी अपने को सोच पाओगे
अपना कुछ कर पाओगे। जॉब के मतलब होता है वही, मैं पुरानी सबसे पहले जिससे मैंने शुरू किया था, कीमत आपकी 1 दर्जन केले पे जा रहे हो या 100 किलो गेहूं के ऊपर जा रहे हो या जो भी करना चाहते हो, तो अपना प्रोफेशन चुनने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू बिकम एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉई? सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। व्यक्तिगत पहचान जो जीवन के लाइफ लेसन में से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इंपॉर्टेंस इसलिए होती है, व्यक्तिगत पहचान मतलब आपके अपने अचीवमेंट क्या है, आप क्या जीवन में कर रहे हो, लोग आपसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं, आप अपनी की व्यक्तिगत पहचान क्या होती है। आज मैं आपके सामने हूं, मेरी उम्र 68 साल है, 68। मेरे को आज 48 वर्ष हो गए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क करते हुए। मैं फ्रॉम अ ट्रेनी आई रोज टू दिस लेवल टू बिकम अ सीईओ ऑफ द DCM Shriram Industries Limited. Now, व्यक्तिगत पहचान में दो चीजें होती हैं। हर आदमी के पास 24 घंटे का समय है। हम वो 24 घंटे कैसे बिताते हैं, अपने ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी करते हैं, हम कितना सीखते हैं रोज, किस किस से सीखते हैं। आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो आपके जितने भी HOD होंगे वो सब भी जरा अपनी नीचे अपनी कुर्सी में जरा पकड़ के बैठे। मैं जो अगला सेंटेंस बोल रहा हूं आपके नीचे की जमीन निकाल देगा और ऊपर का आसमान हटा देगा। मैं 68 वर्ष की उम्र में मैंने अभी 3 महीने पहले एक कोर्स ज्वाइन किया है, लीडरशिप कोचिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लीडरशिप कोचिंग, मीनिंग at the age of 68 I'm still studying, learning and going for a degree and for understanding what is the word, how the word is changing. मेरे साथ जो स्टूडेंट 52 हैं, I'm doing this from the States, Columbia Institute of Management, MIT Salon, USA. It is organized by the 3 institutes, and so there the basic thing is a leadership coaching. मीन्स जो लीडर्स हैं उनकी कोचिंग कैसे की जाती है। अब बोलोगे कोचिंग क्या होती है? सचिन तेंदुलकर का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। सचिन तेंदुलकर ऐसा कहा जा सकता है आज की तारीख में जितने भी रिकॉर्ड है मैक्सिमम रिकॉर्ड उसके पास है। अब विराट कोहली तोड़ पाता है रिकॉर्ड कितने, वो तो समय बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सचिन तेंदुलकर जब तक खेलता रहा तब तक उसके रिकॉर्ड थे। स्टिल वो उसके पास भी एक कोच होता है, हर आदमी के पास एक कोच होता है। सचिन तेंदुलकर का भी ये कोच था। वो क्रिकेट का इतना बड़ा जानकार नहीं है, उसने शायद जिंदगी में रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेली होगी, शायद अपने डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं खेला होगा, शायद उसने कभी बैट बॉल देखा होगा, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर को कोच करता है। उसका कोचिंग का काम क्या होता है? सचिन तेंदुलकर ने अगर कवर ड्राइव मारी है, सब फ्रंट पर निकल करके कवर ड्राइव मारी है, 4 तो गया है, अल्टीमेटली उसने 4th बाउंड्री तो मारी, और उसका जो कोच है वो उसको बताएगा इसमें तुमने जितनी एनर्जी लगाई उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, तुमने जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगाई, आपको थोड़ा कम एनर्जी से भी आप उसको दूसरे 4 को मार सकते थे। सिलेक्शन ऑफ बॉल वाज करेक्ट, बट आपने जो पावर लगाई उसके अंदर में शॉट के पीछे वो जरूरत से ज्यादा लगाई। वही अगर आप अपनी एनर्जी सेव करोगे तो आप डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी और 4 सेंचुरी तक बना सकते हो। कोच does this kind of a job. So even at this age I'm doing a course. I'm like student like you people as of now. even मेरे साथ 52 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से करीब 22 अमेरिका के हैं, करीब 23 से 28 लोग यूरोप के हैं, सब कंट्री के लोग हैं, वेरियस कंपनी के CEOs हैं, वेरियस कंपनी। तो मेरे आज क्लास फेलो जो हैं वर्ल्ड के सभी लोग हैं। मैं आज उनसे पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और रोज असाइनमेंट करता हूँ। मैं रोज 3 घंटे ऑनलाइन जाकर के पढ़ता हूँ और असाइनमेंट को भरता हूँ। सो इंपॉर्टेंट चीज होती है व्यक्तिगत पहचान के अंदर में अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी डिग्री, अपना एक्सपोजर रोज के बेसिस पर बढ़ाना है। आज थ्रेट किसको है? अब प्लीज मार्क माई वर्ड्स, इंडिया इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन। आई स्टार्टेड विद दिस। आज हमको जो थर्ड थ्रेट किससे है? हमको थ्रेट है यंगर जनरेशन से। आपको थ्रेट है जो आज पढ़ रहे हैं, आपसे 5 साल बाद वाली जनरेशन से होगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा इन्फॉर्म हो गई। हमने टेलीफोन देखा नहीं था,
हमने जब कैरियर शुरू किया था तो हमारे पास में आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो. Can you imagine? When I started my career, I was using mechanical calculator. Imagine mechanical engineers, how a mechanical calculator would have been. एक मैकेनिकल कैलकुलेटर कैसा होगा, दो और दो चार जोड़ने के लिए कैसे गियर होते थे उसमें, उसको जो फिगर लिखना पड़ता, उसको टाइप करना पड़ता, उसको रोल करना पड़ता था, तो गियर से ऊपर जाते थे, नेक्स्ट फिगर डालते थे, फिर रोल करते थे, देन यू यूज्ड टू गेट अ रिजल्ट. सबसेट करना पड़ता तो रिवर्स करना पड़ता था. This was when I started a career 46 years back, I was using a mechanical calculator. Today, everybody has a calculator in their mobile, and so all kind of calculators are available in the watch and everything. Even calculators have lived its life. So, my dear friend, आप हम सबको थ्रेट होगा नई जनरेशन से. नई जनरेशन के पास एक्सपोजर हमसे ज्यादा होगा, उनकी एस्पिरेशन हमसे ज्यादा होगी, उनके जो सब चीज हमसे ज्यादा होंगी, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा. वो एक सेंटेंस सुनने के बाद कंक्लूड कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है. तो कृपया करके आप लोग एक चीज को जरूर बच्चों सोचने का और समझने का प्रयास करें कि एक क्या चीज होती. एक किस्सा और सुनाऊंगा छोटा सा. अभी सब लोग कोरोना वायरस से लॉकडाउन में गुजरे. आप लोग भी शायद ही अपने यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पता नहीं क्लासेस आपके ऑनलाइन ही चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे. एक अंतिम कहानी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा. जब कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा था तो लॉकडाउन हुआ. उस लॉकडाउन के अंदर में सब आदमी अंदर थे, लेकिन सारे जानवर जंगलों में आराम से घूम रहे थे. पोल्यूशन बहुत अच्छा था, मतलब एयर बिल्कुल क्लीन थी, वाटर वाज क्लीन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग. तो एक जंगल का किस्सा है ये. एक जंगल में सुबह सुबह का समय, जैसे मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं, या तो जंगल है तो जंगल में सारे जानवर होंगे. तो एक जा रहे हैं तो जैसे एक क्रॉसिंग आती है, जंगल की भी एक क्रॉसिंग थी, जैसे अपना एरोड्रम सर्कल पड़ता है कोटा के अंदर में. तो एक तरफ से एक आदमी, एक टाइगर जा रहा था और सामने से एक गधा आ रहा था. दोनों सामने आते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसी से मिलते हैं तो जानते हैं तो नमस्कार कर देते हैं, या गुड मॉर्निंग सर, या गुड आफ्टरनून, तो गुड मॉर्निंग करते हैं. इसी तरीके टाइगर ने और गधे मिले, दोनों ने एक दूसरे को बोला. टाइगर ने बोला गधे से नमस्कार, तो उसने जवाब नहीं दिया, बिकॉज वो तो अपने अलग मस्ती में था. बोलता है टाइगर, बोलता है गधे को, सर नमस्कार, देखिए कितनी बढ़िया ओस पड़ी हुई है, आपने कितना बढ़िया आज घास आपका ब्रेकफास्ट खाया होगा. घास का रंग क्या हरा, घास इतने हरे रंग की, कितनी ओस पड़ने के बाद कितनी सुंदर लग रही, आपका आज ब्रेकफास्ट तो सबसे अच्छा रहा होगा. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो व्यक्ति बच्चा, तो गधा कहता है उसको, टाइगर से, घास तो मैं खाता हूं, घास हरे रंग की नहीं, घास नीले रंग की है. बहस करने लगते दोनों. टाइगर कहता है भैया देख लो, किसी को बुला लो, घास का रंग हरा होता है. गधा कहता है नहीं, ये घास नीले रंग की है, नीले रंग की, मैं रोज घास खाता हूं, मुझे मालूम है नीला रंग की है, और नीले रंग आप मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता इस घास के बारे में. वाद विवाद ज्यादा बढ़ता है तो जब आगे जाकर के, जैसे आपके वाइस चांसलर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या एचओडीज होते हैं, जब कोई वाद विवाद होता है तो मैटर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाता है. इसी तरीके जंगल का ये मैटर जंगल के राजा शेर के पास जाता है. सर ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे. राजा दोनों की बातें सुनता है. वो बताता है कि टाइगर कहता है मैंने कहा था सर घास का रंग हरा होता है, हरा ही घास है, आपने उसका ब्रेकफास्ट किया, बड़ा अच्छा होगा. तो हमारा वाद विवाद है घास के रंग पर है, मैं कह रहा हूँ घास हरे रंग की, आप किसी से चेक करा लो. लेकिन गधा कहता है घास नीले रंग की है. राजा दोनों की बात सुनने के बाद में सजा सुनाता है, और टाइगर जिसने हरे रंग की घास कही थी उसको सजा सुना देता है. टाइगर हल्ला मचाता है, बहुत चीखता चिल्लाता रहता है कि सर घास का रंग हरा होता है, किसी से चेक करा लो, मैंने हरे रंग की घास कही थी. अब लेकिन डिसीजन दे दिया लॉयन ने, शेर ने, सजा उसको दिया थी और उसको एक दिन के लिए पिंजरे में डाल दिया था. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब शेर मॉर्निंग वॉक पे जा रहा होता है तो सामने टाइगर जंगले में बंद होता है. वो जोर जोर से चिल्लाता है कि सर कल आपने मुझे सजा दी, मैंने उसका विरोध नहीं किया, एक्सेप्ट किया, कृपया करके मुझे बताएं मेरा अपराध क्या था. शेर 1 मिनट रुकता है, बोलता तुम्हारा अपराध था कि तुमको किसने कहा था किस गधे से बहस करो. तो बच्चों, जीवन में जो नकारात्मक सोच के लोग हैं उनसे दूर रहें. यही जीवन है. नकारात्मक सोच से आप बहस करोगे, घास को नीली बताते रहोगे,
हरी चीज को नीली बताते रहोगे, उसी में आपकी एनर्जी जाएगी। और हर आदमी जो 24 घंटे सबको मिलते हैं, आपके लिए भी 24 घंटे हैं, अगर उसमें से 8 घंटे आप घास को नीली और हरी में शिफ्ट कर दोगे तो आप अपने जीवन में परेशानी में ही रहोगे और मुश्किल रहेगी। तो मेरे को एक ही पता है, एक दो पंक्तियां हैं, एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी एक काव्य में लिखा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम खड़े खड़े, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम खड़े खड़े उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। ये नीरज साहब की पंक्ति है, जिन्होंने कहा समय गुजर जाएगा तो आप गुजर जाओगे। और एक और पंक्ति उसमें थी, एक फिल्म में गाना भी उसके ऊपर बना था, वो था कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी तेज है समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना, तू नहीं चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अगर टाइम को आप नहीं वो कर सकते हो तो आप टाइम अगर बर्बाद करोगे तो फिर बाद में जाकर के उम्र में आकर के वो करोगे। आप सब इंजीनियर हैं, मैं एक अंतिम छोटी सी घटना एक्चुअल वाली आपको सुनाता हूं इंजीनियर से रिलेटेड, जो मेरे सामने हुई है। इसको आप लोग सब इंजीनियर सुने कि क्या होता है। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने के बाद में कैंपस सिलेक्शन होता है, जैसे भी होता है, हर व्यक्ति जो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एज ए जीटी करता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो हर जैसे कंपनियों में इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किसी कैंपस में जाते हैं, चाहे आईटी में हो, चाहे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं पे जाके सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन में 2 इंजीनियर भी सेलेक्ट होते हैं, वो एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं। अब सुनना आप बच्चों, 2 सेम क्लास फेलो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम द सेम ब्रांच, सेम इंस्टीट्यूट, सेम टीचर, सेम सिलेबस, सेम स्कूल, सेम मार्क्स लगा करके सेम कंपनी में ज्वाइन करते हैं। एट ज्वाइनिंग टाइम पर दोनों चीजें बराबर होती है, मींस सैलरी, डिजिग्नेशन एंड कंपनी, एवरीथिंग इज द सेम फॉर द 2 fellows studied together, they join the company. But what happens after 35 years? जब 35 साल बाद उनका रिटायरमेंट आता है तो एक जो इंजीनियर होता है वो असिस्टेंट मैनेजर रिटायर हो जाता है। 35 साल में जीटी से एक ऑफिसर बना, सीनियर इंजीनियर, सीनियर जे बन के असिस्टेंट मैनेजर बनकर रिटायर हो जाता है, जिसको 2 बार 3 बार किसी ने दान में प्रमोशन दे दिया है। और एक दूसरा व्यक्ति सीईओ बनता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेम बैच, ज्वाइन टुगेदर इन 35 years टाइम। वो दोनों में इतना बड़ा अंतर आता है। तो एक आदमी इंटरव्यू लेने जाता है, उसका पहले सबसे पहले जाता है उसके पास, उस इंजीनियर के पास जो असिस्टेंट मैनेजर या जो ज्यादा जहां पे ज्वाइन किया था 35 साल में, 1 या 2 कदम आगे बढ़ा था। बोलता है ये बताओ भैया कि आप दोनों लोगों ने सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, सेम लेवल पे ज्वाइन किया था, 35 वर्ष में क्या हुआ? आप सिर्फ 1 या 2 प्रमोशन लेकर के असिस्टेंट मैनेजर पे रिटायर हो रहे हो और दूसरा 27 प्रमोशन लेकर के सीईओ बना है, पूरी हायरार्की पार करके वो सीईओ बना है। आप में क्या डिफरेंस है? तो जो इंजीनियर एज असिस्टेंट मैनेजर रिटायर होता है 35 साल बाद, वो बोलता है मेरा तो लक नहीं था, मेरा मुकद्दर नहीं था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, मेरे को कोई चाहता नहीं था, मेरे को बॉस नहीं चाहते थे, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं तो रोज आता था, फैक्ट्री में काम करता था, आई वाज वर्किंग इन द कंपनी, आई वाज पंचिंग इन द कार्ड, आई वाज कमिंग ऑन टाइम, गोइंग ऑन टाइम, डूइंग 100% ऑफ माय दिस थिंग, एंड आई वाज वर्किंग इन द कंपनी। इट वाज माय बैड लक, nobody has favored me, I never had a godfather। वो कह करके उसको फिर वो द सेम आदमी इंटरव्यू ले रहा है, उस व्यक्ति के पास जाता है जो एज ए सीईओ रिटायर होता है, पूछता है सर वो आप दोनों ने साथ में पढ़ा था, एक असिस्टेंट मैनेजर रिटायर होता है और एक एज ए सीईओ रिटायर होता है, कृपया करके बताएं व्हाट इज द डिफरेंस। वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है कि डिफरेंस खाली, ही वाज वर्किंग इन द कंपनी, आई वाज वर्किंग फॉर द कंपनी, सो डिफरेंस इज इन और फॉर। आप लोग समझ सकते हो, एक प्रोफेशन, क्रिटिकल नॉलेज, ये एक चीज है। हर व्यक्ति को अपना जीवन में चुनाव करना पड़ता है। चुनाव अप्रोच का होता है, एटीट्यूड का होता है, बिहेवियर का होता है। टेक्निकल नॉलेज सबके पास होती है, इंजीनियरिंग सब लोग पढ़ लेते हैं, बट हाउ डू यू सर्व इट? कुक, लॉट ऑफ पीपल आर कुक,
who serves better. That's the key of this thing. मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आप लोगों ने मुझे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ. स्पेशल थैंक्स टू मिस निकिता जैन, जो मेरे बिल्कुल होता है ना, खून के प्यासे टाइप के होते हैं ना, मेरे पीछे पड़ गए कि आपको वेबिनार करना पड़ेगा. आई सेड भैया देखो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थैंक्स टू निकिता जैन and thanks to Career Point University, all office bearers, HODs, head of the departments, and vice chancellor or whoever are there. Thanks to everybody, all people directly or indirectly connected with Career Point University for giving me an opportunity to share some of the thoughts. There are a lot many things to talk. There are a lot many subjects, how to succeed in the life, what is that, those are not many things. In 1 hour time, I think I will try to cover the maximum aspect of life lessons instead of other things. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you very much. If anybody has any question, you can ask. Thank you so much. Students, if you have any query, please raise your hand. Thank you so much, sir, for the motivational word and your time. It's really beneficial for us. Thank you so much, sir, once again. Thank you so much. Thank you so much. All the very best. And God bless you. God bless your family. Sab bachche, all the very best. Keep understanding life is not easy unless you want to make it complicated. If you want to make your life complicated, you can make a life complicated. Otherwise, life is simple and simple. Important hai positivity. Positivity and positivity. अपने अंदर positivity को रखे और spread the positivity across you. This is what is the lesson of the life. Thank you so much to everybody. I'm logging out. Any question or anything? Right. Thank you. I'm logging out. Thank you so much. Thank you, sir.